ملتان میں الیاس ٹاؤن بوسن روڈ کا پارک اجڑ گیا۔ سیوریج کا پانی داخل ہونے سے فیضان پارک جوہر میں تبدیل، کروڑوں روپے سیوریج کے پانی کی نظر، گندے پانی کی وجہ سے پارک کے درخت گر گئے، بچے بھی گندے پانی میں کھیلنے پر مجبور ہیں۔ روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد کمشنر ملتان نے پارک کی حالت زار کا نوٹس لے لیا۔ تفصیلات جانیں اس رپورٹ میں۔ ملتان واسا اور پی ایچ اے انتظامیہ کی غفلت، الیاس ٹاؤن بوسن روڈ کا پارک گندے پانی میں ڈوب گیا۔ فیضان پارک کو 3 سال پہلے کروڑوں روپے کی لاگت سے کمیونٹی پارک کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، مگر آج یہ پارک سیوریج کے پانی کی نظر ہو چکا ہے۔ گندے پانی نے سبزہ، واکنگ ٹریک اور بچوں کے جھولوں وغیرہ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پارک انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اور جس کی وجہ جو ہے سیوریج کا گندا پانی ہے۔ بار بار جو ہے ہم نے کمپلین کروائی اس گندے پانی کی وجہ سے۔ ادھر مچھروں کی اتنی حالت ہے کہ ہر گھر کے اندر ڈینگی کا مریض موجود ہے ابھی بھی، اور جو ہے اسی وجہ سے صحت کے معاملات کو بھی نقصان ہے۔ ہمارے معصوم بچے ہیں، کہاں کھیلیں؟ اس پارک کے علاوہ یہاں پر کوئی دوسرا پلے ایریا ہے نہیں۔ سیوریج کے پانی کی وجہ سے پارک کے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، جبکہ خوبصورت بینچز بھی پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ تعفن اور گندگی کے باوجود بچے اس آلودہ ماحول میں کھیلنے پر مجبور ہیں، جبکہ واسا ملتان اور پی ایچ اے انتظامیہ نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بہت اچھا پارک تھا آج سے 2 سال پہلے نا، یہ سیوریج کی وجہ سے نا، واسا سیوریج کی وجہ سے ساکوئی پڑی ہے لائن، اس کی وجہ سے یہ پارک ڈیڈ ہو گیا، اور پی ایچ والے بھی نہیں آ رہے اس کی وجہ سے نا۔ 2-3 گارڈ اور 2 مالی ہیں اس کے، وہ بھی نہیں آ رہے۔ ہم بہت پریشان ہیں بیماریوں سے، مچھر وغیرہ سے بہت ہی بیماریاں لگ رہی ہیں بچوں کو نا، بہت ہی پریشان ہیں۔ روئی پر خبر نشر ہونے کے بعد کمشنر ملتان عامر کریم خان اور ایم ڈی واسا فیصل شوکت نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ پارک سے سیوریج کا پانی نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ بند سیوریج لائن کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گورمان شیخ، روہی، ملتان۔ آپ کو بتائیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیاں دھڑلے سے سرگرم۔ شہر اور مضافات میں کھلے عام پیٹرول کی فروخت کسی بھی بڑے سانحے کو دعوت دے رہی ہے۔ انتظامیہ کی سب اچھا کی رپورٹ، جبکہ شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ ملتان شہر اور مضافاتی علاقوں میں دکانوں پر کھلے عام پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے۔ سورج میانی، مظفر آباد، قاسم بیلا، رضا آباد، بدلہ روڈ، 14 نمبر اور بی سی جی چوک جیسے علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس قائم ہیں، جہاں معمولی چنگاری بھی قیمتی جانیں لے سکتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وقتی چھاپوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صورتحال پر متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ سول ڈیفنس کی کارروائیاں صرف کاغذوں تک محدود ہیں۔ بھائی جان انجن تک تباہ ہو جاتے ہیں بائکوں کے، ٹھیک ہے، ایک تو پہلی کاروبار نہیں ہے، پہلے ہی ہمارے پر اتنا بحران آئے ہوئے، اوپر سے یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا ہوا ہے، تقریباً 4 سے 5 روپے، کہیں 10 روپے، کہیں 8 روپے، ان کی اپنی حکومت ایک چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا را ہم پر بھی رحم کریں، عوام کو چاہیے، جو ہماری حکمران ہیں، جو ہمارے جتنے بھی تمام اوپر والے بیٹھے ان کو چاہیے ان پہ نوٹس لیا جائے، ان کو بند کیا جائے۔ یہ تو ہمارے اوپر بدماشیاں بھی کرتے ہیں اکثر آگے کہ آپ لوگ کیا کر لیں گے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس اور ایل پی جی ری فلنگ پوائنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 1 ماہ کے دوران 110 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 90 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مختلف کارروائیوں میں 150 دکانوں کو سیل بھی کیا گیا ہے اور غیر قانونی یونٹس کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے انتظامیہ ہر حد تک جائے گی۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایات کے مطابق پورے ڈسٹرکٹ ملتان میں اس ٹائم پہ ہم نے جو اللیگل ڈیکینٹنگ ہے اس کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری ہیں۔ ہم نے تقریباً پورے ضلع میں 150 کے قریب لگ بھگ شاپس جو ہیں وہ سیل کی ہیں، 110 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا پورے مہینے میں۔ اس کے علاوہ کوئی 90 سے 95 لوگوں پہ ایف آئی آر کروائی ہے۔ تو گو کے پورے سٹی کو لے کے پورے ملتان ڈسٹرکٹ کو ہم لیں تو کارروائیاں جاری و ساری ہیں، اور اس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے۔ بارہا شکایت کے باوجود عوام بے بسی کا شکار ہیں۔ غیر قانونی پیٹرول اور ایل پی جی کا کاروبار۔ آپ کو بتائیں مظفر گڑھ کی حدود میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں کی بھرمار۔ شہر کی گنجان آبادیوں میں قائم غیر قانونی کاروبار انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے معمولی جرمانوں کے بعد اگلے ہی روز ایجنسیاں پھر کھل جاتی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ غیر قانونی فلنگ سٹیشن کے خلاف گرینڈ آپریشن کرے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مظفر گڑھ میں غیر قانونی آئل ایجنسیاں حادثات کو دعوت دینے لگیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی فلنگ سٹیشن دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سارا کچھ صفائی کا مرکز بن رہی ہیں اور یہ اوور چارجنگ ہو رہی ہیں سارا کچھ۔ ہم پیٹرول اگر یہاں سے شہر میں سے پمپ سے ڈلواتے ہیں تو وہ 263 ہے یا 53 ہے، جو بھی ہے
वहां से हमें मिलता है 280 रुपए 70 रुपए, ये ओवर चार्जिंग हो रही है। दूसरा ये खतरे का बाइस बन रही है हमारे। शहरियों का कहना है कि चौक कुरैशी, कस्बा गुजरात, बसीरा, कनमान चौक, सुहेल पेट्रोल पंप और जंग मोड़ गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों का गढ़ है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि जिले इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे सूरत हाल का नोटिस लेकर कार्रवाई करें ताकि मुस्तकबिल में कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा ना हो सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। खबर है मुबारकपुर से। मुबारकपुर में अराजी सेंटर की इमारत तामीर होने के बावजूद ताहाल गैर फ़ाल। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए लाखों रुपए की लागत से अराजी रिकॉर्ड सेंटर तामीर किया गया, मगर फ़ाल न होने की वजह से ये जदीद इमारत अमली तौर पर भूत बंगला बनती जा रही है। मुबारकपुर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की इमारत को ताहाल फाल ना किया जा सका। शहरियों को फर्द इंतकाल, फर्द मलकियत और अराजी के दीगर मामलात के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया हो रहा है बल्कि बुजुर्गों और खवातीन को शदीद परेशानी का सामना भी होता है। करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन घर हमारे नजदीक है। लोग देहात से आते हैं, इधर ताला लगा हुआ होता है, कभी ये खुलता नहीं है। अहमदपुर जाना पड़ता है या भावलपुर जाना पड़ता है, इधर कुछ भी नहीं है, हमला है ही नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई, मगर इस इमारत को इस्तेमाल न करना इंतजामी गफलत और अवामी मसाइल से लापरवाही का वाज़े सबूत है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर को फौरी तौर पर फाल किया जाए, अमला तैनात करके अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाए। 1 साल हो गया है, कोई फायदा नहीं है दफ्तर का बनने का। हम अहमदपुर जाते हैं, कभी भागलपुर जाते हैं, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, कोई फायदा ही नहीं है। इंतजामिया अराजी रिकॉर्ड सेंटर को फौरी फाल करे ताकि सरकारी वसाइल के ज़िया को रोका जा सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोइया, रोही, मुबारकपुर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान में बहावलपुर रोड पर सीड्स ऑयल फैक्ट्री के प्लांट में आतिशबाजी का वाकया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सीड्स ऑयल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। 3 फायर व्हीकल्स और 1 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। रेस्क्यू स्टाफ ने बर वक्त ऑपरेशन करके आग पर काबू पाया। आपको बताएं, फायर फाइटिंग में AFFF फोम का इस्तेमाल किया गया है। अहम खबर है मुल्तान से। बहावलपुर रोड पर सीड्स ऑयल फैक्ट्री के प्लांट में आतिशबाजी। आपको बताएं, फतेहपुर के नवाही सेक्टर नंबर 108 ML में नंबरदारी इलेक्शन के दौरान झगड़ा। वोटिंग 2 गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पों में तब्दील हो गई। अमन व अमान खराब। तसादुम के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इलाका मैदान जंग बन गया। झड़प के नतीजा में रिटायर्ड तहसीलदार मलिक मुक्शाद दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। नंबरदारी इलेक्शन के दौरान इंतजामी नाकामी और सिक्योरिटी गफलत बेनकाब। वाक़या ने इंतखाबी इंतजामात और हिफाजती इक़दामात पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। लाश THQ अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर है फतेहपुर के नवाही इलाका चक नंबर 108 ML में नंबरदारी इलेक्शन के दौरान झगड़ा। वोटिंग 2 गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पों में तब्दील। अमन व अमान खराब। तसादुम के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी। इलाका मैदान जंग। झड़प के नतीजा में रिटायर्ड तहसीलदार मलिक मुश्ताक दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। तिरंडा मोहम्मद पनाह के थाना शिदानी की हदूद हेड मलकानी में अफसोसनाक वाकया। बहस और तकरार के दौरान सर में ईंट लगने से 62 साला शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश वर्षा के हवाले कर दी। जाम-बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद नजीर अहमद के नाम से हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। खबर है तिरंडा मोहम्मद पनाह से। थाना शिदानी की हदूद हेड मलकानी में अफसोसनाक वाकया। बहस और तकरार के दौरान सर में ईंट लगने से 62 साला शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश वर्षा के हवाले कर दी। जाम-बहक शख्स की शनाख्त नजीर अहमद के नाम से हुई। आपको बताएं, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस की समाअत। जस्टिस जावेद इकबाल बेंच और तनवीर अहमद शेख पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। सैयद जैन मुर्तजा जैदी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। नए वकील की इस्तदा पर केस आइंदा तारीख के लिए मौखर हुई। वकील का कहना था, गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम फ्रॉड 684 से ज्यादा मुतासरीन हैं। नैब की जानिब से मुलजिम गुलाम अस्कर गुरमानी को बैरून मुल्क से वापसी के इकदाम शुरू हैं। आपको बताएं, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। बार की 7 नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदारत की नशिस्त पर खातून उम्मीदवार सईदा बुशरा नकवी और चौधरी अफजल जट के दरमियान 1-to-1 मुकाबला है। इस हवाले से तफसीलात जाने मेहर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। बार एसोसिएशन की 7 नशिस्तों पर 18 उम्मीदवारों के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के।
सदारत के ओहदा पर चौधरी मोहम्मद अफजल जट और सैयदा बुशरा नकवी आमने सामने हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मलिक सादत हुसैन और चौधरी मोहम्मद अफजल शाहिद संधू में मुकाबला होगा। नायब सदर के ओहदा के लिए 4 उम्मीदवारों शेख शुएब अमजद, मियां मोहम्मद सादिक अंसारी, चौधरी मोहम्मद नईम अराई और चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर मैदान में हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 2 खवातीन उम्मीदवार मैडम नगीना मुजफ्फरा राज और मैडम नौरीन अशरफ आमने सामने हैं, जबकि फनाज सेक्रेटरी की सीट के लिए रऊफ अहमद खान मलिजाई और मोहम्मद अली खान लंगाह के माबैन मुकाबला होगा। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवार फरहान अहमद कुरैशी, राना फैसल अजहर, मियां मोहम्मद खालिद भट्टी और अमारा ताहिर बलोच मद्दे मुकाबिल हैं। एडिटर की नशिस्त के लिए माहर जहांजेब सियाल और हबीबुर रहमान कुरैशी में मुकाबला होगा, जबकि मजलिस अमला की 10 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पोलिंग का अमल हफ्ता की सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। तजावजात की भरमार से मुल्तान की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। रजाबाद चौक से कचहरी रोड तक फूड पॉइंट्स के बाहर नाकिस पार्किंग के नाकिस इंतजामात के बाद ट्रैफिक जैम होने लगी। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है सैयद ज़ुहैब बुखारी ने। ज़ुहैब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम एमडीए चौक पर मौजूद है। यहाँ पर शाम के औकात में खासकर जो ट्रैफिक है वो जाम होना मामूल जो है वो बन चुकी है। वजह जो है वो एक ही है, जो आउटलेट्स हैं, जो शॉप्स हैं खाने पीने की, उसके बाहर ट्रैफिक के नाकिस इंतजाम होने की वजह से ट्रैफिक का जो ब्लॉकेज है वो मामूल बन चुका है। मेरा कैमरामैन अबीब अगर आपको दिखा सके तो ये कुछ मोटरसाइकिल्स हैं, उसके साथ साथ आगे तक जो गाड़ियाँ हैं वो जो है वो गलत तरीके से जो है वो पार्क कर दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है वो मामूल जो है वो बनती जा रही है। यहाँ से गुजरने वाली जो खवातीन है उनको भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है, और जो शहरी है वो यही मुतालबा करते हुए जो है वो नजर आते हैं कि जो पार्किंग के इंतजाम है उसको जो है वो बेहतर बनाया जाए। यहाँ की अगर हम बात करें तो कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो पार्किंग है वो बेहतर ना होने की वजह से कितने मसाइल का सामना है? सर, रोज़ की बुनियाद पर हम जब आते हैं तो यहाँ पे बाइक खड़ी होती हैं, रश इतना होता है, हमारे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, इशारे टूट जाते हैं। हुकूमत से यही अपील है कि इनको या तो रोड खुले किए जाए या ये गैर कानूनी जो इन्होंने ये यहाँ तक अपनी मलकियत बनाई है इसको ख़त्म किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात का सामना है। जैसे देखें ये बच्चे गुजर रहे हैं, अब ट्रैफिक जब क्लोज होती है तो इस पर एक्सीडेंट की रेशो भी बढ़ जाती है, और जो रेस्टोरेंट मालकान हैं वो बाहर अपनी रेडियाँ लगा देते हैं, अपने ठिये लगा देते हैं, बाहर रेंट पे जगह दे देते हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट की जगह है। इससे आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो यही सूरत हाल है, और इंतजामिया से यही मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि जो गैर कानूनी जो है पार्किंग है, जो नाकिस पार्किंग के जो इंतजाम है उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके, ताकि जो ट्रैफिक की जो ब्लॉकेज का सबब बनता है और साथ साथ जो तजावुज़ात की वजह से जो खूबसूरती मांद पड़ जाती है उसको भी जो है वो खात्मा किया जाए। जी आपको बताएं, मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। खुद साख्ता महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान। मार्केट में लहसुन 470 और अदरक 450 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि मंडी में अदरक 400 और लहसुन 400 रुपए फी किलो मिल रहा है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों का मंडी से मार्केट तक का सफर आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगा। शहर की मार्केट में लहसुन 470, अदरक 450, आलू 60 और प्याज 50 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि मंडी में अदरक और लहसुन 400, आलू और प्याज 30 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में मटर और मुंगरे 90, बैंगन 60, शलजम 55 और गोभी 30 रुपए फी किलो दस्तियाब, जबकि मंडी में मटर और मुंगरे 70, बैंगन 40 और शलजम 35, गोभी 20 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में शिमला मिर्च 150, गाजर 50 और लीमू 160 रुपए फी किलो फरोख्त। मंडी में शिमला मिर्च 80, गाजर 40 और लीमू 80 रुपए फी किलो फरोख्त हैं। फल भी आम आवाम की पहुंच से बाहर हैं। सरकारी नरखों में अमरूद 100, अनार 535, पपीता 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद देसी 150, अनार 600, पपीता 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में माल्टे 140 और फ्रूटर 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 100 से 120 रुपए फी दर्जन दस्तियाब हैं। सरकारी नरखनामे के मुताबिक सेब 172 और सेब काला किलो 350 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब मुख्तलिफ इकसाम के मुताबिक 300 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ ने चिल्ड्रन पार्क का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, COMC उमर मुख्तार और दीगर अफसरान हमरा थे।
डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हदायत दी कि पार्क में एंट्री गेट्स को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाया जाए, जॉगिंग ट्रैक जदीद मयार के मुताबिक तैयार किए जाएं, पार्क में रंगरोगन किया जाए। इन्होंने कहा रंग बिरंगी लाइट से पार्क की खूबसूरती में इजाफा किया जाए, किड्स प्ले ग्राउंड में मज़ीद झूले लगाए जाएं, पार्क में सफाई के साथ साथ शजरकारी भी की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लिया का गला मंडी में फूड स्ट्रीट के क़याम के हवाले से दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर टफ्टाइल की तनसीब के जारी कामों का तफसीली जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था फूड स्ट्रीट किसी भी शहर की शनाख्त और खूबसूरती की अलामत होती है। शहरियों को बेहतर तफरीही सहूलियात खाने के मौके मिलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर लिया का गला मंडी में फूड स्ट्रीट के क़याम के हवाले से दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर का टफ्टाइल की तनसीब के जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। फूड स्ट्रीट किसी भी शहर की शनाख्त और खूबसूरती की अलामत होती है। शहरियों को बेहतर तफरीही सहूलियात खाने के मौके मिलेंगे, इसी का यह कहना था। ईसा खेल में बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी, पार्किंग और तारिक आलिम ब्लॉक के इफ्तिताह के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल सेशन जज हुसनैन रजा ने तारिक आलिम ब्लॉक का इफ्तिताह किया। एडिशनल सेशन जज अल्लादिता डाहर, सिविल जज हासिफ ताहिर सलीम और सिविल जज शगुफ्ता शफीक ने भी तकरीब में शिरकत की। सिविल जज शगुफ्ता शफीक ने लाइब्रेरी के लिए अपनी ज़ाती कुतुब भी गिफ्ट करने की यकीन दहानी करवाई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने सदर बार एसोसिएशन मलिक जफर और जनरल सेक्रेटरी इंतजार मेहदी की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। आपको बताएं मियांवाली में जदीद बस टर्मिनल ताहाल गैर फ़ाल ना हो सका। शदीद सर्द मौसम में मुसाफिर खुले आसमान तले गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर हैं, जबकि आरजी बस स्टैंड पर दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। मियांवाली में जदीद बस टर्मिनल ताहाल फ़ाल ना हो सका, जबकि आरजी बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिर कहते हैं मुश्किलात से दो चार हैं। बस टर्मिनल ताहाल फंक्शनल नहीं हो सका, मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर हैं। 2 साल मुकम्मल 2025 भी गुजर गया, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और साथ साथ इसमें लागत बढ़ती जाए जो हुकूमती खजाने पर बोझ बनता जा रहा। तो काम 6 या 22 करोड़ का तखमीना था, लेकिन अड्डे का काम नामुकम्मल है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुदस्सिर आरिफ कहते हैं कि अड्डों की अलॉटमेंट के लिए कमेटी बन चुकी है, दरखास्तों की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही अड्डों की अलॉटमेंट शुरू कर दी जाएगी। बस टर्मिनल का मानदा काम भी तकमील के करीब है। उसके अंदर जो उसकी इंटीरियर जो उसकी फर्निशिंग है, लाइक उसमें जो आवाम के लिए, जो मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह, पानी की जगह, वाशरूम्स, बस उसका छोटा मोटा काम रहता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि जल्द ही मुसाफिरों को तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। आपको बताएं नवाब और बहावलपुर चहारम की जानिब से 1867 में कायम प्रिंटिंग प्रेस की निस्कारी का फैसला कर लिया गया। बहावलपुर की तारीखी प्रिंटिंग प्रेस की नीलामी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत इस तारीखी इदारे को बचाए और मुलाजमीन के हकूक का ख्याल रखे। हुकूमत पंजाब ने बहावलपुर और लाहौर के गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस की निजकारी की तैयारियां शुरू कर दी। फैसले के खिलाफ बहावलपुर में शदीद रद्द अमल सामने आया। प्रेस के मुलाजमीन और सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आए और कुतबे उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने निजकारी के फैसले को रियासत बहावलपुर के तारीखी विरसे के खात्मे से ताबीर किया। नवाब साहब का बख्शीश करदा एक इदारा है ये, और नवाब साहब ने यहाँ बहुत अपने रियासत के सिक्के बनवाए थे। तो हमारी गुजारिश यही है, मैं कि यहाँ का रिटायर मुलाजिम हूँ, तो हम ये गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस असासे को ना, ये जब असासे बिखर जाते हैं फिर बनते नहीं हैं। ये तो इसकी इमारत देख लें तो ये भी बहुत कदीमी है, इनसे कहाँ ऐसी इमारत बनेगी। मुजाहिरीन का कहना है कि 150 साल पुरानी कीमती मशीनरी नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने नीलामी का फैसला वापस ना लिया तो लाहौर तक एहतजाज करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के कीमती विरसा को खत्म करके हुकूमत रियासती दौर की यादगार को भी खत्म करना चाहती है। उधर महकमा सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने कदीम इमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के लिए सिफारिशात तलब कर ली हैं, जिससे खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस हमारा पुराना प्रिंटिंग प्रेस है, ये तकरीबन 150 साल पुराना है, पाकिस्तान से पहले का है। अगर आप कहें कि भी लाहौर प्रेस बंद हो गया, उसको वो है पाकिस्तान बनने के बाद का। ये तो हमारा नवाब साहब की एक निशानी है, एक हमारा विरसा है। इसको मेरा नहीं ख्याल हमारा बल्कि जज्बाती यहाँ से ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब यहीं नौकरी उन्होंने करी है, यहीं से रिटायरमेंट ली है, तो इस लिहाज से तो मैं इसको समझता हूँ कि ये हमारे साथ बड़ा जुर्म है, बहुत बहावलपुर के साथ जिला में।
ملازمین نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ نجکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ ریاست بہاولپور کے تاریخی ورثے کو نیلامی سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب میں دھند گندم کی فصل کے لیے قدرتی نعمت بن گئی۔ دھند کے اسٹاٹ گندم کی افزائش کے لیے نہایت موزوں قرار۔ دھند جتنی زیادہ دیر رہے گی، گندم کے پودے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے، جبکہ کسانوں کو کورا پڑنے پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ ماہرین زراعت نے دھند کو گندم کی فصل کے لیے قدرتی نعمت قرار دے دیا۔ زرعی ماہرین کے مطابق دھند اور سرد موسم گندم کی نشوونما کے لیے نہایت موزوں ثابت ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ خواجہ فرید یونیورسٹی ڈاکٹر محمد نواز کا کہنا ہے، دھند جتنی زیادہ دیر برقرار رہے گی، گندم کی فصل اتنی ہی مضبوط اور صحت مند ہوگی، جو آنے والے دنوں میں بہتر پیداوار کی نوید ہے۔ فوگ جہاں انسانوں کی نقل و حرکت کے لیے بہت زحمت بنی ہوئی ہے، وہیں یہ فصلوں کے لیے بہت ہی رحمت ہے۔ جیسے آج کل ہے فوگ، تو یہ فصل دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چہچہا رہی ہے، اور اس میں موئسچر لیول دیکھیں کہ جتنی یہ فوگ رہتی ہے اتنا ہی یہ کنٹین کرتا ہے، موئسچر اتنی زیادہ دیر رہتا ہے۔ جیسے آج کل نہریں بند ہیں تو اس کی وجہ سے کسانوں کو پانی دینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ یہ نیچرل طور پہ موئسچر اویلیبل ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق دھند فصل کے لیے حفاظتی کمبل کی حیثیت رکھتی ہے، جو پودے کو شدید ٹھنڈ سے محفوظ رکھتی ہے۔ ڈاکٹر محمد نواز کا مزید کہنا تھا کہ دھند کا خاتمہ ہونے کے بعد اگر کورا پڑ جائے تو یہ فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کورا سے بچاؤ کے لیے کسانوں کو ہلکی آبپاشی کرنی چاہیے تاکہ فصل محفوظ رہے۔ جو کھادیں ہم ڈالتے ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے فصلوں کے لیے، اس کے خاص طور پہ گندم کے لیے۔ اگر یہی فوگ جتنی زیادہ دیر رہے گی تو اتنی ہی جو اس کی گروتھ ہے وہ میکسیمم ہوگی، اور جو پیداوار ہے وہ گندم کی زیادہ سے زیادہ آئے گی۔ ماہرین زراعت کے مطابق موسم کی یہ مہربانی اگر برقرار رہی تو رحیم یار خان میں گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔